Hello friends and welcome to the new video of the orders recorded, and this particular video I am making on rule 16 and rule 18 of CCS conduct rule 1964. During the last few classes, so few sessions which I have taken in various institute, the people were asking about, sir, can I invest in cryptocurrency? आप देख रहे होंगे आजकल ऑलमोस्ट हर सेकंड एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, योर न्यूज़पेपर, योर social media is on cryptocurrency. So cryptocurrency is one kind of investment, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपका रूल है वो रूल है आपका रूल नंबर 16, इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग. एज फार एज क्रिप्टोकरेंसी इज कंसर्न, इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा. सबसे पहले ये रूल 16 जान लेते हैं. ये रूल 16 ये अमेंड भी हुआ था. क्या है आज के दिन में ये रूल, वो बता देता हूं. द फर्स्ट रूल, सब रूल ऑफ दिस रूल 16 says that no government servants shall speculate in any stock, share or other investment. Now, as far as this word speculate is concerned, speculate means frequent sale or purchase. इसका मतलब ये नहीं है that you cannot invest in mutual funds or SIP or anything. This is occasional investment made through the stockbrokers or other person who are authorized is allowed. But for this particular purpose, earlier rule was that group A and group B, if their annual investment is more than 50,000, then they have to intimate. And for group C and D employees were 25,000. Now, from the last year, this rule has been made for each and everybody. The rule is same, that if in a calendar year, please note down, if in a calendar year the investment exceeds 6 months of your basic pay, if your basic pay is 25,000, the 6 months basic pay is 1,50,000, then you have to make a report in prescribed form by 31st of January of next calendar year. So this rule is for all the government servant. You know, there is another report also, that statement of immovable property, and that particular rule is only for group A and group B. But this particular rule is for all the government servant, and this is the OM number. You can download this OM from the website also. Now the second 16.2, this is also very important. What this particular rule says, that if a particular company offer you a share out of the quota which are reserved for the directors of the company or their friends or associate, then you should not take those shares. Why? Because then it might be possible that your official working will get influenced by those. आप किसी से कोई फेवर लेंगे तो डेफिनेटली वो उसका कोई फायदा तो उठाएगा ना. तो बोलता है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. डायरेक्टर्स कोटा से आपको अगर कोई शेयर ऑफर करता है, आपको नहीं करना है. नाउ नेक्स्ट थिंग, द पार्ट 2 में जो है बोला है, वो क्या बोला है कि इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO जिसको आप बोलते हैं, ऑफ एनी PSUs अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन you should not purchase or you should not allow any of your family member or any other person on your behalf to purchase those shares. Now, as far as these particular rules are concerned, whether I am talking about rule 16.1, rule 16.2, दोनों के बारे में rule 16.3 में लिखा है कि ट्रांजैक्शन इसमें से
कौन सी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आती है नहीं आती, इसका डिसीजन ओनली गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है और दैट डिसीजन वुड बी फाइनल। 16 फॉर दिस रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट, इसको मैं सम अप करूंगा लास्ट में। दिस रूल्स आर फॉर इन्वेस्टमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द लेंडिंग एंड बोरोइंग, तो बोलता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल से ना तो पैसा ले सकते हैं ना पैसा दे सकते हैं ऑन इंटरेस्ट। बैंक से ऐसा कर सकते हैं, बैंक से और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ आप ऐसा कर सकते हैं, बट अदरवाइज ना तो आप लैंड कर सकते हैं ना आप बोरो कर सकते हैं ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, टेम्परेरी लोन अगर कोई है स्मॉल अमाउंट का फ्री ऑफ इंटरेस्ट तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने रिलेटिव से, अपने पर्सनल फ्रेंड से, फैमिली से आप ऐसा कर सकते हैं। बट अगेन रूल सेज कि अगर जिस पर्सन से आप ऐसी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उससे आपकी कोई ऑफिशियल डीलिंग है, देन यू हैव टू टेक प्रायर सैंक्शन। आपको गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी होगी। ये सारा का सारा रूल था, रूल 16, जो बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट की, लैंडिंग की एंड बोरोइंग की। और है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में ऐसे किसी पर्टिकुलर ऐसी पोस्ट के ऊपर आप जाते हैं जहां पे आपका ऐसा कोई वायलेशन हो जाता है, कोई ब्रीच हो जाता है, यू शुड रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट एंड देन गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट टू डू। रूल 18 जो है वो आपका मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जब आप गवर्नमेंट सर्विस में फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपसे बोला जाता है कि आपकी जो भी मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, फैमिली मेंबर के नाम पे या किसी और पर्सन के नाम पे जहां पे आपका पैसा लगा हुआ है, ठीक है, यू शुड रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। साथ में 18(2) के अंदर उन्होंने जो रूल बनाया है वो रूल बनाया है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए कि दे विल सबमिट ए एनुअल रिटर्न टू द गवर्नमेंट, कि उनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने इनहेरिट की है, ऑन की है, एक्वायर की है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि सर जो मेरे नाम पे तो है वो तो ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो मेरे स्पाउस हैं या मेरी वाइफ हैं या मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से ली है और अपने पैसे से ली है, तो क्या मुझे वो भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी क्या? आंसर इज नो, आपको वो रिपोर्ट नहीं करेगी। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपको स्पाउस के नाम की प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपने पैसे से ली है वो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर जो OM है वो OM है 11013/79 एस्टेब्लिशमेंट ए, और ये आया था 11 सितंबर 1979 को। आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड है वो क्या बोल रहा है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट प्रीवियस नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करेगा, डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ऑन लीज, ऑन मॉर्गेज, परचेज, सेल, गिफ्ट। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो मालूम ही नहीं कि मैं उसके अंदर एंटर कर रहा हूँ। देखिए, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, ऐसा तो यानी ओवरराइट हो गई। आपको मालूम है उसके अंदर कुछ आपका टोकन मनी आपको मिलेगा इनिशियली। तो व्हेनेवर यू रिसीव अ टोकन मनी और यू गिव अ टोकन मनी, इंटीमेट दिस टू द गवर्नमेंट, इट मीन्स यू हैव इंटीमेटेड द ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके अंदर यू शुड इंटीमेट व्हाट इज द वैल्यू, क्या है उसकी वैल्यू है, क्या है। एंड देन फाइनली जब उसका रजिस्ट्री हो जाता है आपके नाम पे या दूसरे उसके नाम पे, देन यू शुड गिव दिस डिटेल इन फुल। वन टाइम डिटेल देने की जरूरत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेदर इट इज ऑन लीज, ऑन मॉर्गेज और परचेज, सेल, गिफ्ट, एनीथिंग।
ठीक है। बट अगेन लास्ट में एक चीज और हमेशा रहेगी, वो ये रहेगी कि अगर जिस पर्सन के साथ आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इफ यू हैव एनी ऑफिशियल डीलिंग, यू शुड टेक प्रायर सैंक्शन, प्रीवियस सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो ये बोलता है कि आपका अगर आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं जिसकी वैल्यू 2 मंथ बेसिक पे से ज्यादा है, then you should make a report to the government within 1 month। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में भी काफी लोगों को डाउट है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अगेन मैंने फिर बोल रहा हूं बार बार कि अगर किसी के साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी के हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, यू शुड टेक प्रीवियस सैंक्शन। प्रीवियस सैंक्शन आपको लेने की जरूरत है। अगेन द रूल 4 सेज कि गवर्नमेंट कभी भी किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट से बोल सकती है टू फर्निश अ फुल एंड कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ मूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग हिज और हर सर्विस। कभी भी बोल सकती है, आप मना नहीं कर सकते हैं कि हम नहीं देंगे। इट माइट बी पॉसिबल कि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट हो एंड गवर्नमेंट वांट टू चेक उसके पास क्या प्रॉपर्टी है क्या है, तो जस्ट दे वांट टू असर्टेन दैट थिंग। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मूवेबल प्रॉपर्टी में आता क्या क्या है। मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है आपका ज्वेलरी जो आप परचेज करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है, शेयर्स, सिक्योरिटीज, लोन्स जो आप सिक्योर करते हैं, ठीक है। इफ यू परचेज ए 4-wheeler और 2-wheeler और horses और any mean of conveyance, और the household goods, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, रेडियोग्राम, टेलीविजन, ये बहुत पुराना वो है, ठीक है। लेकिन आज के दिन के अंदर अगर आप आईफोन परचेज करते हैं या कुछ और ऐसा मोबाइल परचेज करते हैं और उसकी वैल्यू आपके 2 मंथ बेसिक पे से ज्यादा है, ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन having more than 2 basic pay value, then you have to intimate। सबसे लास्ट में देखिए वो क्या लिखा हुआ है, एनी प्राइज वॉन इन एनी कॉम्पिटिशन। अगर आपको याद हो तो लास्ट जो हमने वीडियो किया था वो किया था कि केबीसी पार्टिसिपेंट के ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी केस चला था, तो उसके बाद काफी लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि सर ये तो गलत बात है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर केबीसी में पार्टिसिपेट किया तो उसको चला। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, उसको जो डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था वो केबीसी में पार्टिसिपेशन के लिए नहीं हुआ था। ही हैज नॉट टेकन परमिशन टू लीव स्टेशन, उस वजह से उसका डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है। आपको इसके बारे में रूल बता देता हूं। इफ यू पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन, ये जो आपका ऑर्डर आया था वो ऑर्डर भी बता देता हूं। ऑर्डर जो है वो है 11013/2/89 एस्टेब्लिशमेंट ए, और ये है आपका 28 मार्च 1989 का। इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसमें बोला कि देखिए 2 चीजें होती हैं जो आपके मीडिया के अंदर जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं उसमें 2 चीजें होती हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोडक्ट का जो है प्रमोशन होता है। सेकेंड जो होता है वो होता है आपका जहां पे ये प्रमोशन तो है ही बिकॉज दे आर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, बट सेकेंड थिंग इज जो प्राइज आप वॉन करते हैं दैट इज अमंग द कॉम्पिटिशन अमंग द पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट जो है वो कोई कंपटीशन करते हैं और उसमें जो जीतता है उसको प्राइज मिलता है। तो केबीसी हो गया आपका, या आप किसी को कोई और प्रोग्राम, मान लीजिए कोई डांस इंडिया डांस में कहीं आप पार्टिसिपेट किया आपने, या किसी सिंगल कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया, तो आपको कोई प्राइज मिला, और अगर उस प्राइज की वैल्यू दैट इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट प्राइज इज मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उसकी वैल्यू आपकी 2 मंथ बेसिक पे से ज्यादा है तो सर आप गए। अब आप, मुझे मालूम है आप इतने इंटेलिजेंट है कि कम से कम जो है सेकेंड लेवल तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे। तो अगर वो 3,20,000 से ज्यादा है देन यू शुड इंटीमेट टू द गवर्नमेंट। बट एज फार एज पार्टिसिपेशन इज कंसर्न्ड, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड।
कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपली यू शुड लीव योर स्टेशन विद परमिशन। अगर आप मुंबई में नहीं है, कहीं और जा रहे हैं, कहीं और में पोस्टेड है और आप मुंबई पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं या किसी और स्टेशन, अपना हेडक्वार्टर छोड़ने से पहले परमिशन लेना। अदरवाइज इन सब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। एंड उसके अंदर जो प्राइज मिलेगा वो प्राइज आपको रिपोर्ट करना होगा। दैट कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल 18। नाउ द फाइनल थिंग जिससे हमने स्टार्ट किया था, वेदर आई कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी और नॉट। एज फार एज रूल्स आर कंसर्न, रूल के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग। बट यू नो कि एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट ए लीगल टेंडर। Means it might be possible that tomorrow government come up with a decision that it is illegal. And being a government servant, if you will indulge in sale or purchase of cryptocurrency, you might be in trouble. So my advice to you is that although there is no rule on this, you should not purchase or sell cryptocurrency. एक बार सम अप कर लेते हैं सबको। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और अगर उसकी वैल्यू आपकी 6 मंथ बेसिक पे से ज्यादा है, देन आपको नेक्स्ट ईयर बाय 31 जनवरी रिपोर्ट सबमिट करनी है। सेकेंड थिंग, स्पाउस अगर कोई प्रॉपर्टी लेती हैं ऑन मनी से, यू नीड नॉट रिपोर्ट। थर्ड, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप कोई परचेज करते हैं तो एनी सिंगल ट्रांजैक्शन अगर वो आपकी 2 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा है, आपको रिपोर्ट करना है। एंड फोर्थ, केबीसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर कोई प्राइज जीतते हैं और उसकी वैल्यू 2 मंथ बेसिक पे से ज्यादा है, यू हैव टू रिपोर्ट। एंड ऑल दीज रूल्स जो भी मैंने बताया, नॉट ओनली एप्लीकेबल ऑन यू बट ऑल्सो योर फैमिली इफ यू और योर मनी इज इन्वॉल्व। अगर मनी इन्वॉल्व आपकी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है रिपोर्ट करने की। सो ये था आपका आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। ऑर्डर रिकॉर्डेड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडीज सामने लिखी हुई हैं। थैंक यू वेरी मच।